Hello everyone, I am CM Manish Sajandaria. Today we are here to discuss the GST impact on catering industry. Since the very start of the GST, since the very inception, this particular industry faced lots of challenges and there were lots of changes in this particular industry with respect to GST. And currently we all are going through some pandemic because of COVID. And this COVID pandemic have created a huge adverse impact on this particular industry. We all know that this catering industry is basically for some occasions like you can say wedding or some parties, some anniversaries, 25th anniversary, birthday parties and all this. But since last I think around 8 to 9 months, this particular all the occasions, wedding or some parties and all, everything has been postponed, or in many cases it has been cancelled or it has been cut down to a very lower scale. Because of all this industry is very badly affected. Fine. Whenever we say about catering industry, we have to cover some other industries together with it. Like you can say restaurant, hotels and some manufacturing and sale of sweets. Because what happens, whoever is the caterer, suppose if you are talking of a hardcore caterer, definitely he will be manufacturing and selling sweets also. Because what happens, the catering business is a occasional business. It happens mainly during the festival, during the marriage seasons, okay, anniversary season. And what happens, the anniversary season भी तो उसी वक्त होगा जब marriage season है. And what happens during festive season like Holi, Diwali, there is no occasions of marriage and all. So during that period of time, what they usually do, they manufacture and sell sweets. In fact, during wedding seasons also, whenever there is any wedding in North Indian families, or you can say Marwadi families, it's a culture of distributing sweets with the cards or distributing sweets during marriage or after the marriage ceremony. Okay, so they all are dealing in sweets also. And one more important thing, the labor, you means we can say karigar, Maharaj jisko bolte hain, the Maharaj all are the same whether they are preparing food for the catering party or they are preparing sweets for distribution. भाई दोनों में material और labor बिल्कुल same है. So what usually caterer do, they all are engaged in the business of manufacturing and sale of sweets. Okay, so when we are discussing catering industry, we have to discuss the manufacturing and sale of sweets. On the other hand, when we talk of hotels, what hotels do, they provide room rent services. Apart from room rent services, there is always a restaurant in the hotel. Okay, so they give restaurant services and they also have a banquet hall. In that banquet hall, they organize small parties. It can be anniversary party or sometimes it can be a marriage party also. Okay, many times what they do, even they convert the restaurant area into a banquet hall and there also they give parties, they provide hall for the parties. So what we can see, the hotel industry, they also give restaurant services and catering services. Fine. And the hardcore caterer is giving the sweet sales. Okay, they are selling the sweets. So that's why during my discussion I will be covering restaurant also, I'll be covering catering also, hotels and sweet sales, but our main focus will be on the catering business. One more thing, whenever I am discussing this catering business, I am leaving one part over here, the catering services which is being provided in specified premises. It means वो catering जो 5-star hotels में provide होती है, not exactly 5-star hotels, the hotels where room rent tariff is 7,500 and above, because for them the concept is totally different. Okay, so I am not discussing that particular part. Apart from that, everything I'll discuss in this for this catering industry. Okay, so we'll be discussing these 4 categories. So now let's see the rates, the GST rates. When GST started, okay, when GST started, catering was taxable at the rate of 18% with ITC, and the restaurant was 12% with ITC, and sweet sale was 5% with ITC. Mainly I mean to say everything was with ITC. Okay, later on what happened on 14/11/2017, a notification came and what it said कि restaurant services होगा भाई 5% without ITC.
Okay, restaurant will be 5% without ITC. And after that again one more change came, the big change 1/10/2019, वहां पे केटरिंग को भी 5% विदाउट आईटीसी कर दिया. No, now if we see all the rates together in a tabular form, you can see over here we are talking of catering, restaurant and sweet sales. रूम्स को एक बार छोड़ दे रहे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज केटरिंग, रेस्टोरेंट, स्वीट सेल की जब हम लोग बात करते हैं इन दिस थ्री सप्लाई द इनपुट्स आर सेम, मतलब मटेरियल और लेबर सब सेम है, तो हम लोग इन तीन की एक संग बात करते हैं. भाई जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था एवरीथिंग वाज विथ आईटीसी. तो भाई when everything was with ITC, it was comparatively easy to maintain records. Compliance part was easy, life was easy in that case because भाई सारे खर्चे का ही ITC मिल रहा था, कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना था, कोई कॉमन ITC का कॉन्सेप्ट नहीं था. Whatever you were purchasing, you were supposed to get ITC. Okay? और फिर जो सेल कर रहे थे उस पर हम लोग आउटपुट टैक्स लगा रहे थे, रेट चाहे 18% हो, 12% हो या 5% हो. फाइन. Then what happened on 14/11? There was a change. Restaurant का rate 5% without ITC हो गया. From here onward, life became difficult. First, the life became difficult for the hotels because all the hotels have restaurants. सारे hotels में restaurants होते हैं. And material they use in restaurant and catering, we can say almost 100% same. तो भाई उसी प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट भी और वहां पे लोग केटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. और रेस्टोरेंट के केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, केटरिंग के केस में आईटीसी मिलेगा. सो हियर दे हैव टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर रेस्टोरेंट एंड फॉर केटरिंग. एंड आई से इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हेनेवर सपोज इफ वी आर परचेजिंग शुगर, भाई जो शुगर हम लोग खरीद रहे हैं दैट द सेम शुगर विल बी यूज्ड फॉर द रेस्टोरेंट ऑल्सो. And the same sugar will be used for the preparations for catering business also. And most important, कि at the time of purchase of sugar, I don't know whether it will be used for restaurant or whether it will be used for catering. If it is used for restaurant, we'll not get the ITC. But if it is used for catering, we will get ITC. So it was actually very difficult to maintain separate records. भाई compliance के कारण unnecessary कई लोगों को क्या करना पड़ा, सेपरेट परचेज करना पड़ा. और सेपरेट परचेज करना इज एक्चुअली डिफिकल्ट बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमने जो रेस्टोरेंट के लिए परचेज किया वो सरप्लस है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर केटरिंग एंड वाइस वर्सा. बट चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो यहां पे लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो गई होटल्स के लिए. एंड वन मोर थिंग आई विल से, भाई कैटरिंग और रेस्टोरेंट में कई बार फर्क करना बहुत मुश्किल. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हाट हैपेंस within the restaurant area, suppose if anyone calls for a party of 50%, what usually hotels do, they convert the restaurant area into a banquet hall type, and over there they give the banquet services per plate system. Now it's very difficult. Restaurant में भी तो per plate system होता है और banquet में भी per plate system होता है. Now it's a challenging thing. भाई इसको हम लोग क्या assume करें, whether we should treat it as a restaurant sale or whether it should be treated as a banquet service. ठीक है, आउटडोर कैटरिंग को डिफाइन किया गया, वहां पे बोला इट्स फॉर ओकेजनल. रेस्टोरेंट तो क्या होता है, रेगुलर होता है, बट स्टिल इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क टू क्लासिफाई वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज रेस्टोरेंट सर्विसेज और इट शुड बी क्लासिफाइड एज रेस्टोरेंट. थोड़ा सा आउटडोर कैटरिंग और रेस्टोरेंट में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था, मेनली फॉर द होटल्स. बट स्टिल फॉर द हार्डकोर कैटरर जो प्योर कैटरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उनके लिए अभी भी चीजें सिंपल थी. द रीजन बीइंग they were mainly engaged in the business of catering and the sweet sales, and both businesses were still with ITC. दोनों में भी ITC allowed था, so for them life was still easy. But after that one more change came, and in that change what happened, after notification catering business was also converted into 5% with ITC. भाई 5% विथ आईटीसी हो गया. अब यहां पे जो हार्डकोर कैटरर्स है उनके लिए थोड़ी लाइफ डिफिकल्ट हो गई. द रीजन बीइंग द सेम, द मटेरियल दैट दे वर यूजिंग वाज सेम फॉर द केटरिंग बिजनेस एज वेल एज द स्वीट सेल बिजनेस. बट इन केस ऑफ केटरिंग बिजनेस दे वर नॉट सपोज टू टेक आईटीसी, बट फॉर स्वीट सेल they were supposed to take ITC. Again the problem is
when they were purchasing the material, भाई अगर उस मटेरियल को परचेस करने का कैटरिंग में यूज करेंगे आईटीसी नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वीट में यूज करेंगे आईटीसी मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वी डोंट नो वेदर विल बी यूजिंग फॉर द catering business or whether we will be using for the sweet sale business. So this was really a big challenge. This is not was exactly, now this is a very big challenge for the caterer. But now what we can see, life for the hotels became comparatively easier because hotel industry may generally they are not engaged in the business of selling sweets. They are mainly engaged in the business of restaurant and catering. Now both of their services was without ITC. So for them the things were comparatively simpler. तो होटल्स के लिए थोड़ी चीजें सिंपल होगी, लेकिन जो कैटरर्स है उनके लिए अब दिक्कतें आने लगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उनका 18% विद आईटीसी से विदाउट आईटीसी हो गया. सो दिस इज द वेरी बिग चैलेंज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर द केटरर्स, क्योंकि कुछ में आईटीसी है कुछ में आईटीसी नहीं. और प्रॉब्लम यह है कि मटेरियल जब वो लोग परचेस करेंगे उस वक्त उन्हें नहीं पता कि वो लोग किस में यूज करने वाले, केटरिंग में कि स्वीट सेल में. नाउ हियर इज वन मोर चैलेंज. व्हाट हैपेंस सिंस द वेरी इंसेप्शन, रेवेन्यू इज ऑलवेज ऑफ द व्यू पॉइंट कि पर्टिकुलर टैक्स पेयर इज डाइवर्टिंग इज केटरिंग सेल्स टू स्वीट सेल्स. द रीजन बीइंग केटरिंग सेल में टैक्स रेट इज 18% and in sweet sale tax rate is 5%. So revenue is always of the viewpoint that caterers are diverting their sales. Now after the change also still revenue is of the point of view कि नहीं आप catering sale को sweet sale में divert कर रहे हैं. The reason being in catering sale the rate is same, but in catering you are not getting any ITC, but in sweet sale we are getting ITC. So 5% is the output tax, and generally so far as per my experience, because I have some clients in catering industry, what I feel they get around 2.5% of ITC. तो भाई इफेक्टिवली स्वीट सेल में उनका रेट घट के 2.5-3% आ जा रहा है, बट इन केस ऑफ केटरिंग सेल द जीएसटी रेट इज 5%. सो रेवेन्यू इज ऑलवेज ऑफ द व्यू पॉइंट कि नहीं भैया आप तो कैटरिंग सेल को स्वीट सेल बोल के दिखा रहे हो. सो टू justify this, it's very important for the taxpayer. So it's very important for the taxpayer to maintain proper records to justify their point of view. As we all know in the GST law, if we go in section 35 of CGST Act, it says about maintenance of records. And if we see the line they have mentioned over there, a true and correct account. Mind the words I have underlined also, you can see on the screen. True and correct, not fair. True and correct account of, I am taking only the relevant portion over here. True and correct account of stock of goods. भाई stock का true और correct account maintain करना है. And if we read this section and the rules, rule 56 sub rule 13, we can see over there, it's mentioned every registered person, ठीक है, what will show, every registered person will show quantitative details of goods used in provision of services. मतलब भाई अगर आज मैं कैटरर हूं और मैं कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो उस पार्टी में कितना गुड्स यूज हुआ उसका मेरे को एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मेंटेन करना है. Trust me, it's very difficult because in case of catering business, there are thousands of varieties of items and the inputs are much more than that. और हर इनपुट थोड़ा थोड़ा, चाहे आप एग्जाम्पल इसमें मसाला वसाला, इतना ड्राई फ्रूट्स, मसाले, शुगर एंड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स आर देयर. ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड. भैया इस पार्टी में कितना मटेरियल यूज हुआ, seriously it's very difficult, but still as per the law you have to maintain the record. और आपको रिकॉर्ड इसलिए भी मेंटेन करना है, नहीं तो रेवेन्यू तो कल बोलेगा नहीं भैया आपने तो ये मटेरियल कैटरिंग में यूज किया था लेकिन अब आप उसको शो कर दिए कि नहीं आपने उसको स्वीट सेल में शो किया. सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक so that you can justify on time कि no you have used this material for making sweets or for giving
कैटरिंग सर्विसेज, ये आप प्रॉपर तरह से जस्टिफाई कर सको, इसके यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अदरवाइज यू विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, so in this way we'll maintain the records. Difficult, but anyhow we have to maintain. Now when we are talking about catering industries and the changes they have faced, we can, let's see one by one different cases. Let's see with case one. Mr. Mahesh is the caterer. Okay, now he purchased some capital goods. I'm taking example of fridge. There are lots of capital goods required for doing the catering business. Now he purchased fridge on 30/9/2017, and on that he claimed the ITC of rupees 8,000 because at that time ITC was allowed fully on the catering business. भाई उसने पूरा ITC 8,000 रुपए का ले लिया, कब? 30/9/2017 को. But we all know as per the GST law, the capital asset on which we claim ITC is supposed to be used for 5 years. Fine. Now what happened after the rate change? भाई जब रेट चेंज हुआ, तो रेट चेंज होने के बाद from 1/10/2019, now the catering rate was converted into without ITC. It means अब आप देखो 110 के बाद हमको ITC नहीं मिलेगा. It means the refrigerator that we purchased, on that we took ITC of rupees 8,000. Date of purchase was 30/9/2017 और रेट चेंज हो रहा है विदाउट ITC 110. मतलब हम लोग 2 साल तो प्रॉपरली यूज कर लिए when there was ITC, मतलब ITC was allowed. अब ITC अलाउड नहीं है, तो 5 साल में 2 साल तक ITC अलाउड था, तो बैलेंस फॉर 3 years we have to do proportionate reversal for all the ITC that we availed on capital goods. You can see period of reversal 3 years. Proportionately, if you see, the ITC 8,000 was supposed to be utilized for 5 years, but we are used for 2 years only. After that, ITC was not allowed. So for 3 years, we have to make proportionate reversal, and that will be coming out around rupees 4,800. भाई 4,800 का रिवर्सल करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, दिस इज वन एग्जाम्पल. ऐसे तो बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेज हुए होंगे 2017 में, 18 में, 19 का भी फर्स्ट पार्ट में, तो उन सब का एक रिवर्सल हमें कंप्यूट करना होगा, और वो रिवर्सल हमें एक साथ करना होगा 1/10/2019 को. एंड आई से यू, इफ एनीवन इज हैविंग अ गुड बिजनेस, उसका ये रिवर्सल का अमाउंट विल बी ह्यूज एंड इट विल पिंच अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दिस, भाई ये तो कैपिटल गुड्स का रिवर्सल है. अपार्ट फ्रॉम दिस 1/10/2019 को जो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स भी है, एंड द मटेरियल्स विच आर सपोज टू बी यूज्ड ऑन केटरिंग सर्विसेज, उसका भी जो ITC है, दैट ऑल्सो वी नीड टू रिवर्स, एंड दिस विल अगेन बी अ वेरी बिग अमाउंट, एंड इट विल बी एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसके संग? बहुत कम केटरर्स होते जो 110 को रिवर्स कर दिए होंगे. मेनली व्हाट दे डू कि 31 मार्च को जब अकाउंटिंग करते हैं, एट दैट टाइम ऑडिटर कम्स एंड कंसल्टेंट सेज अबाउट रिवर्सल, एंड देन दे डू द रिवर्सल. बट व्हाट हैपेंड इन मार्च? देयर वाज अ पैंडेमिक. बिजनेस ऐसे ही खराब था, कलेक्शन कुछ नहीं था. जो कलेक्शन आ चुका, एडवांस बुकिंग थी, वो भी कैंसिल हो रही है. एंड अबव दैट दिस बर्डन ऑफ रिवर्सल. ट्रस्ट मी, इट वॉज ए नाइटमेयर फॉर द कैटरर्स. इतना बड़ा रिवर्सल करना है, बुकिंग्स है नहीं, पेमेंट्स है नहीं, इतने स्टाफ का पेमेंट करना है, सो मेनी फिक्स कॉस्ट, एंड ये रिवर्सल. सो दिस वॉज अ बिग चैलेंज. इनफैक्ट एज पर माई व्यू, अभी भी कई कैटरर्स है जिनको शायद इस रिवर्सल के बारे में पता नहीं है, बट दे आर सपोज टू रिवर्स दिस अमाउंट. अदरवाइज 2 तरह का अमाउंट रिवर्स करना है. एक तो कैपिटल गुड्स जो उन्होंने 1/10/2019 के पहले खरीदा और ITC लिया, एंड वन मोर थिंग, 1/10/2019 को जो स्टॉक ऑफ मटेरियल था और जो आप कैटरिंग में यूज करने वाले, उसका भी ITC आपको रिवर्स करना है. सो दिस विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. ओके, तो ये एक चैलेंज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स सी केस 2, वन मोर केस. अगेन मिस्टर महेश इज अ कैटरर. भाई उसको एक एडवांस मिला था 50 लाख रुपीस का, प्लस 18% GST इन द मंथ ऑफ अगस्त.
Because in August we were not knowing कि rate will reduce to 5%. तो 50 लाख का एडवांस प्लस 18% इट विल कम अराउंड 9 लाख. तो टोटल 59 लाख रुपीज उसने रिसीव किया फॉर अ वेडिंग पार्टी टू बी हेल्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड ऑन इन दिसंबर 2019. ओके, मिस्टर कमलेश ने बुकिंग कर दी 50 लाख प्लस 18% 59 लाख. नाउ व्हाट हैपेंड? 110 को रेट रिड्यूस होके 5% हो गया. भाई सबको पता रेट रिड्यूस हो गया, कैटरिंग पर रिड्यूस हो गया. कमलेश वाज आल्सो वेरी हैप्पी, यस रेट रिड्यूस हो गया. बस उनको यही पता है रेट रिड्यूस हो गया, बट दे डोंट नो द अदर पार्ट. अब महेश कैटरर क्या करे? भाई कमलेश जी का फोन आ गया उनके पास कि भाई कैटरिंग पे तो जीएसटी रेट रिड्यूस होके 5% हो गया एंड एज पर आर एग्रीमेंट 18% था, तो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 13%. अगर उसने पैसे पहले दे रखे तो ही इज डिमांडिंग बैक द बेनिफिट ऑफ 13%. बट कमलेश को यह नहीं पता रेट रिड्यूस जो 5% हुआ उसके संग एक क्लॉज भी है. व्हाट इज दैट क्लॉज? विदाउट आईटीसी. मतलब नाउ महेश विल नॉट गेट आईटीसी. इफ ही इज नॉट गेटिंग द आईटीसी डेफिनेटली दैट विल ऐड टू द कॉस्ट बर्डन. भाई वो महेश का कॉस्ट इंक्रीज करेगा. सो डेफिनेटली कैटरर, इन आर केस महेश, कांट पास ऑन द बेनिफिट ऑफ 13% टू कमलेश. भाई 13% की बेनिफिट वो बिल्कुल भी पास ऑन नहीं कर सकता. द रीजन बिंग, पहले भी जो 18% का टैक्स था ना, कैटर पे बर्डन 18% का नहीं पड़ रहा था बिकॉज देयर वर सम ह्यूज आईटीसी. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट बट स्टिल 9-10% का आईटीसी तो पक्का, या 7-8% का तो पक्का ही आईटीसी मिलता होगा. लेकिन अब वो आईटीसी नहीं होगा. सो दैट डेफिनेटली दैट विल ऐड टू द कॉस्ट बर्डन. सो नाउ व्हाट मिस्टर महेश शुड डू? भाई दोनों को मिलके एक कोई म्यूचुअल कंसर्न के संग डेफिनेटली पार्टी को 13% का बेनिफिट नहीं मिल सकता, बट कैटरर भी पूरा 13% नहीं ले सकता. कैटरर भी 13% ले सकता. तो एक अग्रीमेंट करना होगा, दोनों को म्यूचुअली अग्री करना होगा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 3%, 4%, वट एवर एक अमाउंट अग्री करके उससे लिखवा लेना होगा कि यस आई एम अग्रीइंग टू दिस, बैक्ड विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस कि हाँ भाई मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है, आई एम पासिंग ऑन दिस बेनिफिट टू यू. अदरवाइज एंटी प्रॉफिटेरिंग मार डालेगा. बिकॉज रिसेंटली सम डिसीजंस हैव केम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन केस ऑफ सम कंपनीज ऑफ दिस इंडस्ट्री ओनली, कि वहां पे KFC, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहां पे भी एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ने उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी क्योंकि वो कस्टमर को पास ऑन नहीं किए बेनिफिट. तो यहां पे भी कैटरर को बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा बैक विथ प्रॉपर कैलकुलेशन कि यहां पे ये कैलकुलेशन, इसके हिसाब से मेरे को बेनिफिट 4% का हो रहा है, आई एम पासिंग दिस बेनिफिट टू द कस्टमर. ओके, और महेश को क्लाइंट को गुड फेथ में लेके ये काम करना हो. कुछ बेनिफिट डेफिनेटली पास ऑन करनी है, बट ऑब्वियसली पूरा बेनिफिट पास करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज था कैटरर्स के लिए. फाइन, बिकॉज क्या होता, मार्केट में हवा फैल गई कि रेट रिड्यूस हो गया, रेट रिड्यूस हो गया, विदाउट नोइंग द होल फैक्ट. ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड चैलेंज. भाई कई पार्टी से एडवांस मिला. नाउ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक क्या हो रहा है, पार्टीज कैंसिल भी हो रही है. अब ये जो एडवांस मिला उस वक्त जीएसटी रेट मान लो 5% था. अब मान लीजिए कोई एक पार्टी कैंसिल हो गई. फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टी कैंसिल होता है और आप उसका अमाउंट फोरफिट करते हैं, तो ऑन दैट जीएसटी रेट इज नॉट 5%. ऑन दैट जीएसटी रेट विल बी व्हाट, 18%. बिकॉज इफ यू सी द शेड्यूल 2, वहां पे एक पर्टिकुलर एंट्री है इसके लिए, ठीक है ना, फॉर टॉलरेटिंग एंड एक्ट वाला एंट्री, उसके अंदर में जीएसटी रेट विल बी 18% बिकॉज वी आर नॉट गिविंग कैटरिंग सर्विसेज, इट इज फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट. भाई हमने 1 लाख रुपया फोरफिट कर दिया, तो उस 1 लाख रुपए पर जो जीएसटी का रेट होगा दैट विल बी 18%. कई कैटरर लोग ये भी मिस्टेक करें कि भाई उस पर रेट 18 की जगह 5% यूज करेंगे. भाई हमारा बिजनेस तो 5% के रेट का था, तो यहां पे 5% नहीं जी, 18% होगा. इसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट फ्रेंड्स इसके लायक ऐसा कोई आईटीसी नहीं होगा कि जो आप क्लेम कर पाएंगे. तो यहां पे आपको 18% टैक्स लगेगा. डेफिनेटली आप क्लाइंट से रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चैलेंजेस रही हैं. एंड इन केस कैटरिंग इंडस्ट्री जो
बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर कंसल्टेंट है, उनको तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जा रहा है, दे आर फॉलोइंग दिस. बट आई से यू मोस्ट ऑफ द केटरर्स डोंट नो अबाउट दिस लॉज, और वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. बट लेटर ऑन व्हेन दे कम टू नो अबाउट दिस, भाई जब कोई नोटिस आएगी या डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी तब उनको पता चलेगा, और तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी. दे हैव टू पे ह्यूज इंटरेस्ट एंड इन सम केस पेनल्टीज ऑल्सो. तो भाई ये सारी चीजें आप लोग को प्रॉपरली ध्यान देना है. ठीक है, एक केस हम लोग और आते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर दैट, व्हेनेवर एनी आउटपुट टैक्स इज विदाउट आईटीसी, मतलब आईटीसी नहीं है, आउटपुट टैक्स है, तो इन दैट केस वो जो टर्नओवर है दैट शुड बी ट्रीटेड एज exempt टर्नओवर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रूल 42-43. जो कॉमन आईटीसी का रिवर्सल होता है उसके लिए विदाउट आईटीसी का जो टर्नओवर है दैट इज ट्रीटेड लाइक अ exempt टर्नओवर. फ्रेंड्स, व्हाई आई एम सेइंग दिस? इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट. I give you a very interesting example on this, okay? Because this happens when a hotel, बहुत बड़ी होटल नहीं है, small होटल जिसमें रेस्टोरेंट भी है, banquet services भी है and rooms भी है. Generally they give room on rent basis of minimum 1500, and we all know 1000 के ऊपर रूम रेंट होने से it is taxable, 1000 के नीचे होने से it is exempt. But what happened? Mr. Mahesh, he is giving catering in the banquet hall. Same premises में banquet hall है. There is a small restaurant and there are rooms. Okay. During pandemic, what happened? He gave some rooms for lesser than ₹1000. What happened because of this? Some of its output supply of hotels was exempt. भाई इसके कारण क्या हो गया? कुछ होटल्स की सप्लाई क्या हो गई? एग्जेम्प्ट हो गई. नाउ दिस एग्जेम्प्ट सप्लाई क्रिएटेड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आईटीसी रिवर्सल. आई शो यू कैसे इसका एक ह्यूज इंपैक्ट आएगा. ओके, देन आई गाइड व्हाट ही शुड हैव डन. ओके, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कॉमन आईटीसी, think of a hotel. In case of hotel, what happens? All the expenses are common. 100% expenses are common. भाई आप रूम 1000 से ज्यादा में दोगे या 1000 से कम में दोगे, खर्चे तो सारे वही हैं. बट इन दिस केस व्हाट हैपेंड, मिस्टर कमलेश, मिस्टर महेश, ही ऑफर्ड सम रूम फॉर बिलो 1000, लेकिन आईटीसी सबका क्या था? कॉमन था. लेकिन क्या हो गया? कुछ एग्जाम. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? आप एक बार स्क्रीन पे देखो. यू कैन सी केटरिंग इनकम, टैरिफ चेंज हुआ, टैरिफ चेंज हुआ. टैरिफ चेंज हुआ मतलब एवरी सप्लाई इज एट अबव 1000, मतलब 100% टैक्सेबल. कैटरिंग इनकम दोनों में सेम है, रेस्टोरेंट इनकम दोनों में सेम है. अब रेंट चेंज होने के कारण आप देखो क्या हुआ? रेंट बिलो 1000 1 लाख रुपीस, लेकिन अगर चेंज नहीं होता तो पूरा का पूरा 20 लाख अबव 1000 में होता. अब इसके कारण क्या हुआ? यू कैन सी ओवर हियर, if I show you with the marker, you see, अब यहां पे क्या हुआ आप देख सकते हैं कि ये जो बिलो 1000 वाला एग्जेम्प्ट हो गया, इसका इफेक्ट क्या हुआ आप देखो. अब यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या हुआ? व्हाट इज द एग्जेम्प्ट सप्लाई? यू कैन सी ओवर हियर. आप देखिए यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होगा? ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, रेस्टोरेंट वाला भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, रूम रेंट बिलो ये भी एग्जाम सप्लाई है. समझ रहे भाई? केटरिंग और रेस्टोरेंट इज 5% विदाउट आईटीसी, सो इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम. तो आप देखो ये तीनों मिला के एग्जाम कितना हो गया? यू कैन सी 131, और टैक्सेबल कितना है? 19, और टोटल कितना हो गया? 150. तो इसका मतलब रिवर्सल रेशियो, डिसलायंस रेशियो क्या होगा? 131 आउट ऑफ 150 इज एग्जाम. तो जितना भी कॉमन आईटीसी होगा आपको 87% रिवर्स करना पड़ेगा. और होटल की तो सारी आईटीसी कॉमन है. अगर टैरिफ चेंज नहीं किया होता तो क्या होता? आप देखो यहां पे ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, यहां पे ये वाला है ही नहीं. इट मींस व्हाट कि होटल्स में
एग्जाम सप्लाई कुछ है ही नहीं, तो जो भी होटल का आईटीसी है पूरा मिल जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ रिवर्सल। होटल की बात कर रहा हूं, पूरा आईटीसी मिल जाएगा, उसमें हमको कोई भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। होटल की रूम से रिलेटेड में आईटीसी की बात कर रहा हूं, कुछ भी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि सारे रूम्स क्या हुए 1000 के ऊपर हुए, विल गेट फुल आईटीसी, तो कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करना ही नहीं है। तो यहां पे कुछ भी रिवर्सल नहीं आया, लेकिन यहां पे कॉमन आईटीसी का आप देखो 87% आपको रिवर्सल करना होगा। और सबसे मजे की बात है इस रिवर्सल में ना, अगर उस जीएसटीआईएन में आपका टोटल एग्जेम्प्ट सेल और टोटल सेल लेना होगा फॉर द डिसअलायंस रेशियो। ऐसा नहीं कि आप खाली होटल बिजनेस का ले लेंगे, फिर उस जीएसटीआईएन में जितना भी टोटल सेल है और टोटल एग्जेम्प्ट सेल है पूरा को कंसीडर करना होगा, एंड दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर डिसअलायंस रेशियो। और आप इसका इंपैक्ट देख सकते हैं, कॉमन आईटीसी हैव अज्यूम 2 लाख है, तो आपको कितना रिवर्स करना पड़ रहा है? 1.75 लाख आप देखो रिवर्स करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो भाई आप ये जो 1 लाख का रूम रेंट था ना, इसको भी बोलते भैया तो 1000 के ऊपर ही दे, उससे लेते 1000 के ऊपर, कितना टैक्स लग जाता? वहां पे 12,000 लगता, लेकिन यहां पे देखो कितना बड़ा अमाउंट आपको रिवर्सल करना पड़ा। सो दिस शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर इन केस ऑफ होटल्स हु आर गिविंग रेंट, हु आर गिविंग ऑन रेंट। भाई 1000 रुपीज से कम में हो सकता है आपको रूम, कुछ रूम्स ऑफर करके फायदा नहीं है, क्या तो सारी रूम्स हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कुछ रूम्स खाली उस रेट में ऑफर कर देंगे, देन देयर इट कैन लीड टू, इट कैन रिजल्ट इनटू ह्यूज रिवर्सल। तो ह्यूज रिवर्सल आ जाएगा, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी स्पेशल केस, ये वहीं अप्लाई होगा जहां पे होटल, कैटरिंग और रेस्टोरेंट सभी कुछ है, वहीं पे ये केस अप्लाई होगा। ओके, सो दीज आर सम डिफरेंट केसेस जो एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द केटरिंग का रेट। एंड वी ऑल नो द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन दिस इंडस्ट्री। भाई मेन क्या इफेक्ट आया? पहला इफेक्ट जो हम लोग डिस्कस कर लिए, रेट चेंज होने के कारण ह्यूज रिवर्सल ऑफ कैपिटल गुड्स एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, वो तो एक मेजर इफेक्ट है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंसिलेशंस, भाई ऑलमोस्ट 6 महीने से साल भर की बुकिंग्स कैंसिल हो गई, तो दैट क्रिएटेड ए ह्यूज आउटफ्लो। और सबसे मजे की बात है, व्हेन वी रिसीव दैट अमाउंट वी टुक इट एज एडवांस, नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू देम, वी ऑल्सो हैव टू पे द टैक्स बैक, बट वो टैक्स अभी हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने रिटर्न्स में, क्योंकि अभी तो मेरा कोई कैटरर का आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो तो जब आउटवर्ड सप्लाई होगा तब वो एडजस्ट कर पाएगा। फिलहाल उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी नहीं है कैटरर के पास, क्योंकि उसको इतने रुपए पे करने पड़ जा रहे हैं जीएसटी के, कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई कैटरर्स लोग अपने खुद के बैंक्वेट लेके रखते हैं, तो बैंक्वेट कई तरह से लेते हैं। सम कैटरर व्हाट दे डू, दे टेक बैंक्वेट ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस। तो आपकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उन्होंने जो भी ओनर है बैंक्वेट का उससे बुकिंग कर ली और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, दे आर फाइन कि भाई अब पार्टी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट उनको रेंट भी पे नहीं करना है। सेकेंड टाइप ऑफ कैटरर, दे टेक प्रीमाइसेस ऑन फिक्स्ड एनुअल रेंट बेसिस। अब साल भर तो भैया बिजनेस हो नहीं रहा, स्टिल दे आर इन बेटर पोजिशन, बिकॉज जनरली जो इस तरह का अग्रीमेंट करते हैं दे कीप अ फोर्स मेजर क्लॉज। भाई इतना बड़ा पैंडेमिक है तो डेफिनेटली उनको रेंट में वेवर मिला ही होगा, नो डाउट। कम बेसी अलग बात है, नेगोशिएशन की बात है अपनी अपनी, लेकिन कुछ वेवर तो डेफिनेटली उनको रेंट में मिला होगा। बट कुछ कैटरर्स ऐसे हुए जो खुद की प्रीमाइसेस खरीद लिए। अब जो लोग खुद की प्रीमाइसेस खरीदे उनका फंडिंग 2 तरह का हो सकता है, तो ओन फंड खुद के पैसे से खरीदे, दे आर इन अ बेटर पोजिशन, ठीक है। उनका खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिलहाल इतना मैटर नहीं करता इस पैंडेमिक में। लेकिन जो लोग बैंक्वेट खरीदे लोन फंडिंग से, बैंक से लोन लेके, भाई साल भर में उस लोन को सर्विस करने के लिए कैश फ्लो तो कुछ आया नहीं, लेकिन इतना बड़ा इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मॉरिटोरियम है, बट मॉरिटोरियम इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इट इज जस्ट डेफरमेंट ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन उनको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सो दे आर इन ह्यूज क्राइसिस। इनफैक्ट कई केटरर का तो गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, वेदर दे कैन सस्टेन और नॉट। स्मॉल कैटरर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है।
हाँ, जिनका कोई कमिटमेंट नहीं है इस तरह का रेंट का और लोन का, दे कैन स्टिल फील सेफ. ठीक है, अभी कमाई नहीं कर रहे, वंस दे ओवरकम दिस पैंडेमिक they can really do the good business. But currently we are in the month of October end. भाई currently we can't see any sign कि आने वाले 6 महीने में तो कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो पाएगा. Still we are hopeful कि all the industry will again revive and normal business करने पड़ेंगे. Because one thing we should not forget, this catering industry gives huge employment. बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इस कैटरिंग बिजनेस के कारण भी. ओके, सो लॉट्स ऑफ पीपल्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट टू एनालाइज द इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन catering industry. Okay, if you feel to watch more such informative videos, you can subscribe our channel My Tax Sport. Okay, thank you so much.